اسی لیے اس کے ترک کا حکم آیا کہ اس کو دفع کرو، ترک کرو، اس سے بچو، اس سے پناہ مانگو. آئی نا سمجھ میں کہ وہ غیر حقیقی ہے، اس کا نتیجہ برا ہے، غیر ہے، حق نہیں ہے. جس کا نتیجہ حق نہیں ہوتا نا تو خراب کرنے والی. اچھا اب یہ بات اب ہے حقیقی. وسوسہ حقیقی ہونا چاہیے. وسوسہ حقیقی صحیح صحیح نہیں ہے لیکن ہونا ہے. ہوگا. ہاں یہ ابتلا ہے، یہ ابتدا ہے، یہ اس میں مبتلا ہونا پڑے گا. اس میں مبتلا نہیں ہوگے تو حقیقت تک نہیں جا سکو گے تم. یہ ارادتاً ہونا یعنی کہ اگر ہم جب مراقب ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اپنے ارادے سے بناتے ہیں. نور کا یہ ہے نا یہ بات، یہ اپنے ارادے سے بناتے ہیں. اچھا جبکہ نہ نور برس رہا ہے نہ کچھ ہے تمہارے اوپر. ابھی تو یہ قصب ہی ہے نا سارا. جی سوچ ہے، خیال ہے، جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ساہو نہیں ہے. واہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا ارادہ بھی تمہارا متزلزل ہے، ارادہ بھی مستحکم ہے. کبھی تو نور برس رہا ہوگا تم پہ اور کبھی تم گند میں موجود ہو. ارادے میں بھی استحکام نہیں ہوتا. جب ارادے میں استحکام جس میں نہیں ہوتا وہ ساہون ہوتا ہے. اب اس میں استحکامت لانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ مراقبہ ہے، یہ مراقبہ تمہاری دنیا آپ ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ اس کا خدا تم خود ہو. یہ دنیا تم خود تخلیق کر رہے ہو. آئی سمجھ میں بات؟ یہ بھی بات ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ ہر وقت ذکر میں رہو. مراقبہ جب شروع کرنا ہو تو پہلے ذکر کرو تاکہ تمہاری سوچ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. تو جب تمہاری سوچ پاک ہو جائے گی تو تمہارے خیالات بھی پاک ہو جائیں گے. اور جب خیالات پاک ہوں گے تو اس سے جو کچھ تم تخیل کرو گے وہ سب پاک صاف. تو اس لیے پہلے ذکر کرو پھر مراقب ہو جاؤ. اب مراقب ہونے سے مراد ہے نگہبانی کرنا اپنے قلب کی. اس پہ تم نے غیر حقیقی وسوسہ ہٹا کے حقیقی وسوسہ ڈالنا. اور حقیقی وسوسہ اس کا یہ ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے ہو، اس سے تمہارا نور آ رہا ہے، اس سے تم منور کیے جا رہے ہو، تمہاری ہر چیز نورانی ہو رہی ہے. یہی ہے نا مراقبہ. شیخ کا بھی درجہ یہی ہے، جیسے کوئی کرنا چاہتا. اس میں ذات سے شیخ کی ذات سے تمہارے اپنی ذات سے بھی. وہ عمر کا جب ذکر کرتا ہے تو اس میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے، تصور نہیں ہوتا. ٹھیک ہو. اچھا اسی لیے کہتے ہیں نا ذکر لسانی لقلقہ اور ذکر قلبی وسوسہ. ذکر قلبی جو ہے یہ مراقبہ ہی، یہ وسوسہ ہی. یعنی مراقبے کا نام ہے ذکر قلبی. اب جب ہم اس میں آتے ہیں تو ہم وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور اس وسوسے کو پختہ کرتے ہیں. اب وہ وسوسہ چاہے نور کا ہو چاہے شیخ کا ہو. ابھی شیخ کی ذات تو نہیں ہے سامنے تمہارے، لیکن تم نے وسوسے میں اس کو سامنے کھڑا کرنا ہے اپنے ارادے سے. جس طرح ظاہر کی دنیا تم تخلیق کرتے ہو مادے سے، تم کسی ایک چیز کے کاریگر ہو جاتے ہو. مثال کے طور پر تم میسن ہو گئے تو تم نے اینٹ پہ اینٹ رکھ کے عمارت تعمیر کر لی، اس کو پلاسٹر بھی کر لیا. تم جب کاریگر ہو گئے جب تو کر لیا، اور جب تک کاریگر نہیں ہوتے تو تم نہیں کر سکتے.
तुम से प्लास्टर ही नहीं होगा, माली नहीं रुकेगा, ईंट ही नहीं रखी जाएगी सीधी। तो जब तुम कारीगर होने के लिए तुम्हें टाइम लगता है ना, पहले तुम मजदूरी करोगे फिर कारीगरी पे आओगे ना, पहले गारा बनाओगे उसको बनाना सीखोगे, आए ना समझ। तो जिस तरह तुम जाहिर में मादे से दुनिया तैयार करते हो, इसी तरीके से यहाँ पर वसवसे से दुनिया तैयार की जाती है, आए ना समझ। और उसका जो मटेरियल है वो तुम्हारे अंदर पैदा होता है और तुम उसको तख्लीक करना शुरू करते हो। अभी तुम कारीगर नहीं होते, तो वो बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, बिगड़ती है, कभी कुछ होता है, कभी कोई शक्ल बनती है, कभी कोई शक्ल बनती है। अब जब प्रैक्टिस में आते हो, जो 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 तुम कारीगर होते जाते हो, एक जाविये में लाते जाते हो हर चीज को, और एक दिन तुम इतनी प्रैक्टिस में आ जाते हो, जब आंख बंद करी सब कुछ मंदिर तुम्हारे सामने आ जाता है, और फिर वो हकीकत होता है, वो गैर हकीकी नहीं होता। वो मंजर ऐसा होता है इसमें तुम किसी को दाखिल करो, किसी को निकालो, वो यकीन की हद में आ जाता है, इख्तियारी होता है, गैर इख्तियारी। बिल्कुल इख्तियारी हो जाता है, इतना इख्तियारी हो जाता है, वो इतना इख्तियारी हो जाता है कि तुम अपनी मर्जी से निकल के जाओ, उसमें दाखिल हो, सब कुछ करो, वापस आ जाओ। इतना इख्तियारी हो जाता है। सुना है ना कि बुजुर्ग कब्र में चले जाते थे अपने मुरीद की, कि भाई इसका हिसाब किताब हम देंगे, बता क्या है। जैसे कि हज़रत ख्वाजा मुईन चिश्ती का वाक़या है कि आप क्यों चले गए थे, ये मुराकबे की बात है। इतनी इख्तियार पैदा हो जाता है। जिस तरह ये तुम्हारा मादा है, क्योंकि मादे में हो, ये मादे के साथ है, तो इसमें मादे का ही जरूरत है। हम जो देख रहे हैं वो मादे को देख सकते हैं इस आंखों से, इसीलिए कहा था ला तुदरिकुल अब्सार, और यही कहा था मूसा से कि तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि मूसा जहां पर सवाल कर रहे हैं वो मादा है, वहां पर वो नासूत है। आई ना। अब हम जिस आंख से देखना चाहते हैं, जो कुछ हमारी आंख हमें दिखा रही है वो मादा है, क्योंकि हम मादे से देखना चाहते हैं, तो मादे को देखना है। अब इसमें जो कुछ हम करते हैं तो वो सादिर होता है, नहीं होता। अच्छा, अब यही हाल रूहानियत का है बिल्कुल। जब रूहानी पे तुम एक्टिव हो जाते हो और तुम अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देते हो, बनाना जानते हो, बनाने लगते हो, तो तुम में रूहानी कुव्वत ये पैदा हो जाती है कि तुम रूहानी तौर पर खड़े होकर कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी रूहानी जगह पर जा सकते हो। यहाँ मादे की जरूरत नहीं है, रूहानी की जरूरत है, वहां तुम दाखिल हो जाओगे, पहुंच जाओगे और वहां सवाल जवाब करोगे, बात करोगे, चीत करोगे और वापस आओगे। यही दरबार रसूल का हिसाब किताब है। ये जाते हैं बुजुर्ग दरबार रसूल में, बैठे बोलते हैं और आते हैं वहां से, वो तो अपने घर में ही होते हैं। वो उसी वो कैफियत हालत जब भी होती है बंदे की, जब बंदा मेहमान हो जाता है तख्लीक करने का अपनी दुनिया का, वो अपने हाथ से अपनी दुनिया तख्लीक करता है। आई ना समझ बात। वो मजे की बात ये है कि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बात तो वो अब दूसरी चल रही है। अपनी विलायत उसकी अपनी ममलूकत होती है, जो विलायत है बंदे की, ये उसकी अपनी ममलूकत है, और अपनी ममलूकत का वो बादशाह है, और वो अपनी ममलूकत का हाकिम भी है, अपनी ममलूकत का रब भी है, और अपनी ममलूकत में जैसा देखना चाहता है वैसी ममलूकत उसकी होती है वो वैसी। और उस ममलूकत के जरिए वो जब बादशाह होता है और ममलूकत का मालिक होता है, तो जब बादशाहों की महफिल होती है उसमें बादशाह बैठता है, उसको बादशाह को इनवाइट किया जाता है ना, बादशाहों की महफिल होती है तो इसीलिए दरबार रिसालत से उसके लिए पैगाम आता है कि पहुंचो, कि वो अपनी ममलूकत का बादशाह है, बादशाह को पैगाम दिया जा रहा है कि ममलूकत में पहुंचो। वो शहनशाह होगा, शहनशाह की ममलूकत में आना आए ना। तुम वहां अरे गैर का काम नहीं होता कि जो चाहे पहुंच जाए। तो इसीलिए जो इब्तिदा हाल है इसकी, अच्छा लोग उसी पे भरोसा कर लेते हैं, तो इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि वो कुछ नहीं है, उस पर भरोसा नहीं करो, कतई नहीं करो। तुम किसी बुजुर्ग को देख रहे हो क्योंकि अभी इब्तिदा में तुम उसकी रमूज से वाकिफ नहीं हो, तुम उस ममलूकत के बादशाह नहीं हो, फिर तुम्हारी ममलूकत में किसी को दाखिल होने के लिए इजाजत की जरूरत होगी। अभी कोई भी आ जाएगा,
मकसद ये शैतान आ जाए। किसी भी सूरत उस वक्त जब तुम अपनी मखलूका के बादशाह बन जाते हो तो शैतान नहीं आता। शैतान फिर दस्तखत करता है कि मैं आऊं, तुम कहोगे आ जा, तो आ जाएगा। तुम कहोगे क्यों आएगा, तो बाहर खड़ा रहेगा। क्योंकि कानून नहीं है। ये दुनिया पूरी एक अलग दुनिया है। जब तक हम मादे में फंसे रहते हैं, जब तक हम रूहानियत में दाखिल नहीं होते, मौत मादे को तर्क करने का नाम है। जब मादे से छूटता है आदमी तो उसको कहते हैं मौत हो जाती है। मौत हो कब्ल मौत, कि मर जा मरने से पहले। मुराद यही है कि अपने मादे को छोड़ दे अपने छूटने से पहले, कि जब तुझसे छुड़ाया जाए और एक तू छोड़े। जब तू छोड़े तो ये हकीकी मौत है, जब छुड़ाया जाए तो गैर हकीकी मौत है। गैर हकीकी मौत पर तुझको इख्तियार खत्म हो जाएगा और हकीकी मौत पे तेरा इख्तियार रहेगा। आइए समझ लो, क्योंकि फरिश्ता ये ताकत नहीं रखता कि तुमसे तुम्हारा इख्तियार ले ले। वो कानून के तहत है, वो कानून के तहत आएगा अपना काम करने, और तुम्हें कानून के तहत अपने आप को उसके हवाले करना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी देर के लिए होगा जितनी देर के लिए वो मादे से उसको छुड़ाएगा। अब मादे से छुड़ाने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, इसलिए कि तुम मुख्तार हो, वो छोड़ देगा। इसकी ताकत नहीं है। यहां तक की बात है कि हत्तुल इम्कान इतनी ताकत हो जाती है कि बंदा अपने रब से कहता है कि इसको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता ये कौन है, गैर काफिर है। फिर हक कहता है अच्छा ठीक है हट जाओ, मैं खुद ही करूंगा। तो फिर उसकी रूह हक खुद कब्ज करता है। यही उसकी बख्शिश की जमानत है और उसकी मोहब्बत का सिला है। कि पूरी ऊपर जो जतन किया था ना, वो सिर्फ इसी काम के लिए तो कर रहा था कि मुझे तू मार। भी मिल गया, हमारे साथ भी हो हाँ, सब काम खत्म हो गया ये इस एक लम्हे में। इसीलिए कहते हैं कि ये लम्हा मौत जो है दोस्त को दोस्त से मिलाता है। ये वही वक्त है कि दोस्त से दोस्त को मिलाने वाली बात यही होती है कि मैं इसको नहीं जानता ये कौन फरिश्ता है, कौन है तेरा ये, क्योंकि इसने मुझे पैदा नहीं करा था और गैर को मैं पहचानता नहीं हूं। अब वहां तो लड़ाई है ना, वहां दोस्त की और खासिम की लड़ाई है। तो फिर वो दोस्त की लाज रखता है कि ठीक है, खासिम से कहना तुम पिछड़ जाओ, हम खुद करेंगे, जैसे कि मूसा के साथ हुआ। मारा था आपने थप्पड़, यही हालत थी, ये विलायत की हालत थी। वो उस वक्त आपकी विलायत गलबा कर रही थी। आप चूंकि मुशाहिदा ज़ात में दाखिल हो गए थे, तो गैर से तो ताल्लुक थे ना। जब गैर ने हाथ डाला तो आपने थप्पड़ मारा, ये कौन है तू? ये बात है। तो वो मकाम अजीब ही होता है। वो अच्छा उन्हीं लोगों को हासिल होता है कि जो मुशाहिदा रूही करते। क्यों कि मुशाहिदा रूही जो है वो अमरे रब्बी है। बंदा रब का अमर हो जाता। क्या बंदा खुद रब का अमर हो जाता है उस कशूद में। जब कशूद रूही हासिल होता है बंदा अमरे रब हो जाता है, अमरुल्लाह कहलाता है कि ये अल्लाह का अमर है। आप हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस्मा में पढ़ते हैं ना अमरुल्लाह,
है ना, वो रजाल अल्लाह होता है, वो मर्द खुदा होता है। अब फरिश्तों की कोई हिम्मत और कोई ताकत नहीं होती उस पर, कि वो उसके मामले में दाखिल हो सके, क्योंकि खुशूद रूही जो है ये वो मकाम है जिसके लिए सरकार आलम फरमाते हैं कि मेरे और मेरे रब का कुछ मामला तो ऐसे हैं जिसकी फरिश्तों को भी खबर नहीं होती। ये वही खुशूद है, ये बंदे और रब का मामला है बिल्कुल, जो उस कल्ब और उस कदम पर होता है उसके साथ यही मामला है। उलुल अज़म वो वली जैसे शेख अबू कादिर जिलानी है, ख्वाजा मोईन चिश्ती हैं, शेख शाज़ली हैं, शेख शहाबुद्दीन हैं, इस तरह जितने भी उलुल अज़म बुजुर्ग गुजरे हैं ये तमाम उसी हाल में थे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि उस वली जो कशूद रूही में होता है जिसको, उस वली का तसर्रुफ दोनों हालतों में कैसा होता है, क्योंकि जब वो रूह से कशूद रूह से तसर्रुफ करता है ना दुनिया में, तो फिर उसके मरने के बाद भी उसकी हालत वही होती है, उसमें कुछ कमी नहीं बात करो, बल्कि और नंगी तलवार हो जाता है, फिर वो दोधारी हो जाता है। ये उसको एक फजीलत भी हासिल थी और अब अमर भी हासिल हुआ, तो ये बात हो जाती है। लेकिन अक्सरियत बुजुर्गों की कशूदा कल्ब पर और कशूदा जिक्र पे खत्म हो जाती है अक्सरियत। जैसे आपने एक बार इरशाद फरमाया था कि हमारे जो हमारा सुलूक का तरीका होता है उसमें तो हम पोशीदा लेके चलते हैं, इसमें फिर जो सालिक है वो अपने शहर कैसे आबाद करेगा या उसमें कैसे क्या, यानी इन दोनों बातों में क्या समझे फर्क क्या? असल में तमाम सिलसिलों में जो है वो रास्ता इब्तिदाई हाल में कराया है ना, ये लोग करते हैं वस्त में जाकर, वस्त में इसलिए कराया जाता है ताकि जिक्र में पुख्तगी आ जाए, उसकी रूहानियत पुख्ता हो जाती है, उसके दिल में रूहानियत का इस्तेकाम हो जाता है। अच्छा, फिर उसको शुभ होगा वो जिक्र में नहीं होगा, उस दर्जे से गुजर उस दर्जे से गुजरता या तो कल्बी होगा या है या फिर रूह होगा। अच्छा, जो कल्बी होता है, कल्बी की भी हालत कमाल हालत है,